शुण प्ले तुम सरीला कौटा इक्वल मास ना कि नेक्स्ट हूँ एटॉमिक मास एटॉमिक मास पिले देख व्हाट डज मीन बाय एटॉमिक मास। अच्छा बर्तमान मत पिले कहल मुझे गोटे क्वेश्चन पचार वन आटम मन कर अच्छी ऑक्सीजन आटम वन आटम ऑक्सीजन केते अच्छी वन आटम ओनली वन आटम। अच्छा पहले गल किए कही पार आर मास केते हम ये केते ग्राम केते हम हाउ मच ग्राम वन आटम ऑक्सीजन अच्छी that become how many gram केते हम one atom oxygen that becomes how much gram 16 grams very good 16 by Abbott's number why if we'll take Avogadro's number of atoms that becomes one mole that equal to atomic mass in gram okay if we'll take this amount of Avogadro's number of amount of substance that become 16 grams 16 gram okay तो वन atom oxygen equal to 16 grams 80 ग्राम ना बुझले निको इसपे कहलो वन atom सल्फर केते होबो ग्राम 80 ग्राम सल्फर केते होबो 32 भाई Avogadro's number ना बुझले निको कार्बन केते होबो 12 by what Avogadro's number grams actually kahar mass केते होबो it is very difficult to remember kahar mass केते होबो very difficult to what remember बुझले ना बुझने को अच्छा आमे जस्ट गोटे एग्जांपल कहूँ आमे को जदि मेजरमेंट करूचे आमे को करे कहूचे ग्राम करे कहूचे बुझले तो गोटे लार्ज पार्टिकल आमे यूनिट कहबा मु तो ग्राम रे कहूचे देखो मु जो माने वर्ल्ड रो वेट केते तो ग्राम का करे एक्सप्रेस करबो कि बुझन को माने होची इजी टू रिमेंबर you have to use that number that what easy to what remember so the mass of atom is so small people say this expression in grams they become how much that become how much 2 point something into 10 to the what minus 23 grams which is very difficult to remember so what unit you have to take a comparison mass or relative mass you have to take somewhat relative mass which easy to remember to whom we have to relate we have to take lighter elements whose mass is a whole number which one the best is carbon best is what carbon if we assume this carbon atom equal what 12 by how much Avogadro's number if we take 1 by 12th of a carbon atom 1 by 12th of a carbon atom মানে कार्बन एटम मास जति हबो तर 1 by 12th मास हबो 1 by 12th मास हबो तले केते गलो
এই মাসর 1/12 ইউজ করিব এই মাসর 1/12 ইউজ করিব তাহলে কেতে হবো এই মাসর 1/12 ইউজ করিব বাস কেতে হবো আরে কোন this become 1/6.023 10 to the power 23 gram 23 gram this become this gram are yes or no if we'll take this equal to 1 mu mu means what atomic mass unit then you say this become how much যদি আকো আমি 1 আকারে ইউজ করিবা তাহলে ইয়ে কেতে হবো 16 mu এটা কেতে হবো 32 mu বুঝেন কো তাহলে this equal to 16 mu atomic mass unit this equal to what 32 mu so 1 mu means what 1 mu means what this gram মু যদি কবি গোটে mu মানে কোন 1 mu মানে কোন this equal to this gram this equal to this gram মানে 1 by Aber's number gram 1 by Aber's number of grams okay মু কবি SO2 ର ମାସ ଆମେ କେତେ କହୁଛି ନା 64 actually কোন গ্রাম নো এটা কোন 64 AMU what does it mean 64 AMU what does it mean 64 by what Aber's number in gram that means that তা মানে হচ্ছে সেয়া বুঝুনি কো 64 AMU মানে কোন 64 by what Aber's number in grams okay so atomic mass is just what a relative mass with respect to what now 1/12 of the mass of carbon atom mass of what carbon atom মনে কর তুমি গোটে ক্লাস রে তুমি এতিক বেলা বসছ তার মনে কর আর ওয়েট হচ্ছে 10 kg লেট 10 kg সে 20 kg 30 40 50 60 70 80 90 kg মু যদি আর 10 kg কি 1 বলে অ্যাজুম করিবি মানে 10 টাকে মু 1 কহিবি তাহলে 20 কেতে কয়া যাব 2 30 কেতে হবো 3 60 কেতে হবো 6 90 কেতে হবো 9 মু কহিবি 4 means what 40 kg আরে 4 means what 40 kg কাই কি মু 10 kg কি 1 অ্যাজুম করছি 10 kg what 1 অ্যাজুম করছি যদি আকু মু 1 বলে অ্যাজুম করবি তাহলে কেতে হবো 32 ये तो 16 अरे बुझे बुझे निको তাহলে আকু মু 1 বলে অ্যাজুম করছি বুঝে হচ্ছে নিকো 1 বলে what অ্যাজুম করছি মানে আকু রিলেট করি কি ये কেতে হবো সে কেতে হবো বুঝে নিকো দ্যাট ইজ কল্ড what atomic mass तो atomic mass means what a relative mass with respect to what relative mass with respect to what now 1/12 of the mass of carbon atom अरे बुझो जन को 1/12 of the mass of what carbon atom अच्छा पहले करो मु जदि तार 10 kg की 2 कहबी 2 बोले जूम करबी 10 kg की 2 बोले जूम करबी তাহলে 20 kg के जूम करा जीवो 4 अरे केतो 4 2 टाइम्स हो 30 kg के तो 6 2 टाइम्स जूम करा जीवो बुझियो जने को अच्छा वर्तमान पहले देखो मु जदि थर एग्जाम रे क्वेश्चन पचातला जदि 1/12 जगह रे मु 1/6 यूज करबी 1/6 यूज करबी তাহলে एटॉमिक मासटा कोन हबो आ एग्जैक्ट मासटा कोन हबो ले क्वेश्चन थर पीएम रे पचातला যদি 1/12 जगह रे मु 1/6 यूज करबी তাহলে व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक मास एंड व्हाट हैपेंस टू एग्जैक्ट मास अच्छा फर्स्ट कलो एटॉमिक मास टा के तो हबो एग्जैक्ट मास टा कहो एग्जैक्ट मास टा के चेंज होगी तारो एग्जैक्टली 10 kg के चेंज होगी एग्जैक्टली 10 kg चेंज होगी 1 टू रिलेटिव नंबर को परे चेंज हे पारे रिलेटिव नंबर टा चेंज हे पारे किंतु एग्जैक्ट मास टा के चेंज होगी एग्जैक्ट मास को चेंज होबनी रिलेटिव मास टा कहो चेंज हबो मु आको रिलेट करी 1 कहि पारे 2 कहि पारे 3 कहि पारे 4 कहि पारे जा भी कहि पारे बुझनी को अच्छा उत्तर मते पिले कलो मुदि 1/12 जगह मुदि 1/6 यूज करबी तले मास के हबो এটা কত কোন 2 বাই আভার্স নম্বর যদি 2 বাই আভার্স নম্বর মু 1 বলে অ্যাজুম করবি
2 बाय आवर्स नंबर को 1 कते 1 बोली अज्यूम करबी तले ये केता हबो 16 ये केता हबो 8 और yes or no ये केता हबो 32 तामाने what does it mean the atomic mass become half atomic mass become what half अरे क्लियर कि नॉट क्लियर बुझने को थोड़े एग्जाम रे पचारतला पीबीएस र क्वेश्चन देखि बड पचारछि जदि 1/12 जगह मध्ये 1/6 यूज करले कोन हबो द एटॉमिक मास बिकम हाफ व्हाट द एग्जैक्ट मास ऑफ एटम रिमेन सेम एग्जैक्ट मास के चेंज हबो ना अरे अबोर्ट्स नंबर टा के चेंज हबो सेतिकी एटम तो यूज कला माने मास तो एतिकी हबो एग्जैक्टली एटा को बच्चा दला आकोदी माने अधा धरा जीव ना कोन हां हां माने आर्टिमेस्टा कोन हबो एटा 1 एटा केता मन धरछि एटा एटा तो कोन केते धरछ हमें 1 बाय आवर्स नंबर को केते करछ 1/6.023 10 to the power 23 बुझलो तो this you have taken what this equal to 1 mu हला एमी देखे नला एनिम देख सुनो 6.023 10 to the power 23 जदि एते के नंबर तू पार्टिकल्स यूज करिवो एग्जैक्टली मास केता हबो एग्जैक्ट मास टा केता हबो एटॉमिक मास इन ग्राम atomic mass in what gram मनकर atomic mass in gram हबो atomic mass what in gram हबो एटा एग्जैक्टली दिस इज एक्यूरेट बुझलो तो तू आको रिलेट करके तू जहा यूज करि परिबो ताको रिलेट करी तू जहा बर्तन यूज करि परिबो हला अच्छा बर्तन मु कहली कोन जदि अच्छा गोटे तले माने 1 एटम रो मास तले एग्जैक्टली केता 1 एटम रो मास एक्चुअली एग्जैक्टली केता हबो अरे कोनु एटॉमिक मास बाय 6.023 केते 10 to the power 23 एति ग्राम हबो बुझियो चने को अच्छा तू जदि कहू एति ग्राम एग्जैक्टली हबो तू कोन कहू दी 6.023 10 to the power 20 धर मन को 20 यूज करो एक्चुअली एति की पार्टिकल मास होची एग्जैक्टली एति की तले एति की मास एक्चुअली केता हबो नहीं मत कोन 8 जदि एति केला एटा केता मास केता हबो एको मोल कर दनु मोल कल केता हबो this molecule how much gram अरे कौन एति की अको कौन बोलू आको मल्टीप्लाई कले हिजबो कोन आको मल्टीप्लाई कले केते हिजबो ए बाय केते कोन 1000 चेंज होनी तो कौन मु आकु बर्तन 1 बोली अज्यूम करबी ताले कोन हबो सपोर्ट से अनुसार चेंज हिजबो केते चेंज हबो एति चेंज हबो एग्जैक्ट सदा फिक्स तो कहा को ने कि अज्यूम करबो दैट इज डिफरेंट 1 एटम यूज करबो कि 2 एटम यूज करबो कि 4 एटम यूज करबो जा भी यूज करबो दैट इज डिफरेंट 1 mole double 6.02 1 mole is equal to 6.02 particle फिक्स पार्टिकल्स नहीं सेटा फिक्स तो रिलेट काकू नहीं तो रिलेट मन कर आकू 1 यूज न करी आर दीटा नहीं कि मु 1 बिले अज्यूम करबी दीटा पार्टिकल 1 बिले अज्यूम करबी तो सेंसर से केतो
बुझियो निको मु आकु बोले आकु 1 बोले अज्यूम करबी एको एटा को 1 बोले अज्यूम करबी एटॉमिक मास दिस नंबर इक्वल कोन अरे बुझियो निको अज्यूम करबी से केते हबो पार्टिकल कोन चेंज हो केते चेंज हबो एते चेंज हबो अरे बुझियो निको से सेति केला पटा करछ ना उतर कहबी को लेख बर्तन ता लेख ताने लेखु ए पॉइंट नोट करो लेख एटॉमिक मत मोबाइल टा if Abbott's number is changed from this number to this number, it would change the ratio of a chemical. এটা হচ্ছে এতিকি number per moles. তো সেতিকি numberটা মোল আকারে ইউজ করিব যদি গোটে মোল আকারে ইউজ করিব বুঝলো তো the ratio of a chemical species to each other in balance equation সেটা কি চেঞ্জ হবনি বুঝলো তো the ratio of elements to each other in a compound সেটা भी चेंज होबनी बुझले सेटा के चेंज होबो बुझलो तो the कोन डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स सेटा के भी चेंज होबनी तो सब समान हैला ना तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन सेटा चेंज होबो मन साइलेंट लिखो एटॉमिक की लिखो एटॉमिक मास मींस व्हाट एटॉमिक मास मींस व्हाट द मास ऑफ वन atom of an element divided by what 1/12 the mass of a carbon atom C12 carbon atom C12 what carbon atom এটা লিখি সেতর কইব তো नेक्स्ट पॉइंट नोट करो देखो एटॉमिक मास is a comparison number atomic mass is a comparison number atomic mass is what comparison number बुझलो तो atomic mass is what comparison number then you can write 1/6.023 into 10 to the what 23 gram equal to 1 mu. You have to assume 1 by Abbott's number equal to what 1 mu. So that 1 atom of a carbon equal to 12 by Abbott's number, this equal to 12 mu. Oxygen equal to 16 by Abbott's number equal to what 16 mu. 16 what mu. Okay, next point note करो देखो instead of 1/12 instead of 1/12 instead of कौन लिखली 1/12 if 1/6 is used 1/6 is used 1/6 is used the atomic mass becomes what the atomic mass becomes half half clear or not clear but the exact mass of atom
exact mass of atom remains unchanged. Exact mass of atom remains but unchanged. किसी change होबो नहीं. No change. Exact mass become what? Remains unchanged. अच्छा बर्तन मत पिले कहलो मन करो क्लोरीन it has two isotopes. Isotopes means element same, mass number different. Same element, different mass. It possesses two different mass, 35, 37. 35, 37. In this case, which one you have to take? The atomic mass of chlorine, 35 or 37. Which one you have to take? 35 you have to take or 37 you have to take? In this case, you have to take average atomic mass. How? If we'll take a sample of chlorine. If we'll take what? A sample of chlorine that contains 35, 37 in the ratio of 3:1. Means if we'll take 4 chlorine atom, that possesses 35 mass 3, 37 mass equal to what? 1. तमें जदि 4टा क्लोरीन एटम यूज करिवो 35 मास केते थिवो 3टा थिवो 37 के थिवो गोटे थिवो एटा एक्सपेरिमेंटल ये टोटल एक्सपेरिमेंटल बुझने को तले व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मास ऑफ क्लोरीन यू हैव टू टेक व्हाट एवरेज एवरेज कितना बोलो 35 into 3 plus 37 into 1 by total कितने 4 equal how much 35.5. It is the what? The average what? Atomic mass of chlorine. Average atomic mass of what? Chlorine. अच्छा बर्तमान में देखो नोट करो एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज व्हाट? एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास को मैं बेस करके गोटे फॉर्मूला भी क्रिएट करि परियो केमती एट देखो मन गोटे एलिमेंट अछि x एलिमेंट ना होछि x एलिमेंट रो नाटा कोन x इट पोजेसेस टू आइसोटोपिक मास a1 मास a2 मास a1 टा कोन a2 टा कोन a1 टा कोन a2 टा कोन तारो आइसोटोपिक मास ओके a1 a2 present in sample in the ratio of it is a molar ratio of what n1 is to n2 molar ratio of what kate n1 is to n2 अरे पिले बुझलो बुझन को तले बर्तन मत पिले कहलो तले ए केस रे एवरेज एटी मास केतो हबो तो निजे भी परबो कोनो तने एवरेज एटी मास ऑफ एलिमेंट x इक्वल हाउ मच एटी मास इक्वल बिकम हाउ मच कोनो a1 into n1 plus a2 into n2 by n1 plus n2 total mole into atomic mass become total mass. Mole into atomic mass, mole into atomic mass, you can get a gram, this gram plus this gram equal to total gram. This is equal what? Total gram. बुझने को? So average atomic mass equal what? a1 into n1 plus a2 into n2 by कितने? n1 plus n2. ओके अच्छा बर्तमान प्लेट को ओपन कर दलो एटा ओपन कर दलो पूरा खोली दो पूरा एटा केते पकलो a1 into what n1 by n1 plus n2 plus a2 into what n2 by n1 plus n2 बर्तमान प्लेट को एटा कोन मोल बाय टोटल मोल्स त कोन दिको आकु कोहा जाय कोन मोल फ्रैक्शन कोन दिको मोल फ्रैक्शन दिस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन
ता माने एटा आउट फार्मूला तुम पाई परिबो जे एटॉमिक मास इक्वल व्हाट कोन A1 into mole fraction of A plus A2 into what mole fraction of B तमे भी जानछो दिस प्लस दिस इक्वल कितना 1 एटा एटा मिसले केतो 1 हबो एटा मिसले केतो ऐड करले केतो 1 हबो ऐड करले 1 हबो तो दिस आल्सो इक्वल टू A1 x1 plus A2 into 1 minus x1 ना बुझिलानी को आको बेस करके पहले क्वेश्चन मु खाली कहि दोची तो डाकुनी खाली पैटर पैटर कहि दोची मनकर दुईटा आइसोटोप मास अछि गोटेकर मोल फ्रैक्शन देछि पचारिबो त एग्जैक्ट मास टा केता हबो पचारिबो क्वेश्चन हबो कि नै को मनकर आर एटॉमिक मास देछि 12 ये देछि 14 आर मोल फ्रैक्शन देछि 0.2 हबो कि नै को तो ये ला 12 ये ला 14 तले ये ला 0.2 कोन मोल फ्रैक्शन तो एटा केता जिवो 0.8 हबो कि नै को तले दिस इनटू दिस प्लस व्हाट दिस इनटू दिस आंसर एटा कोन पाइबो तमे एटा कोन पाइबो एग्जैक्ट मास नो एग्जैक्ट एटॉमिक मास एग्जैक्ट व्हाट एटॉमिक मास एग्जैक्ट एटॉमिक मास अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ना बुझले निको अरे बुझलो निको नेक्स्ट देखो अच्छा बर्तमान मते पिले कहलो मन करो A1 A2 आइसोटोपिक मास और मोलर परसेंटेज इक्वल टू मोलर दिस इक्वल टू मोलर परसेंटेज x1 परसेंटेज x परसेंटेज दा देखो परसेंटेज बाय मास ना परसेंटेज बाय मोल एटा परसेंटेज बाय मोल दिस इक्वल व्हाट परसेंटेज बाय मोल्स बुझने को एटा केते मोल्स x1 परसेंटेज एटा केते होतले 100 माइनस x टोटल परसेंटेज केते 100 टोटल परसेंटेज केते 100 बुझो ना तले बर्तमान मते पिले कलो एई केस रे एग्जैक्ट मास केते हबो को एई केस रे केते हबो को average you have to what average कितना होगा this into this plus this into this by total कितने 100 अरे टोटल कितने 100 तब मैंने फॉर्मूला कौन हो a1 x y a1 x plus what a2 into 100 minus x y कितने 100 अरे y कितने 100 ना बुझला निको ओके प्ले एग्जैक्टली सेम प्रोसेस एट देखो मन करो मिक्सचर ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस मिक्सचर ऑफ गैस माने गैसेस मिक्सचर हे गछ गोटे गैस टा मिक्स हे गछ मन करो ऑक्सीजन अछि ओजोन अछि किमा नाइट्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि मिक्सचर ही गैस अछि दीटे गैस मिक्स ही अछि दीटे गैस कोन अछि मिक्स ही अछि मन करो एआर कोन अछि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मन करो गोटे गैस होछि x1 गोटे गैस होछि x2 एग्जैक्टली सेम फार्मूला जदि ये होछि n1 मोल ये होछि n2 मोल तले मोल फ्रैक्शन रे केता हो सॉरी माने मॉलिक्यूलर मास तो मिक्सचर टा केता हो केता हो अरे मिक्सचर मॉलिक्यूलर मास केता हो कि नहीं को कित बारे मत कोनो आ मोल केते n1 आ मोल केते n2 बुझने को you have to take what how can get this अरे को नो एवरेज कौन हो एवरेज केता हो x1 into n1 plus x2 into n2 by कितने n1%. अरे कौन जे सेम फॉर्मूला अच्छा एटा कोन एको ओपन करले एटा केते मोल फ्रैक्शन हिजबो एको ओपन करले केते जो मोल फ्रैक्शन हिजबो तले काम कर एटा काम कर एक्चुअली x1 एलिमेंट x2 एलिमेंट हला x1 एलिमेंट x2 एलिमेंट आर मॉलिक्यूलर मास जे मान आ मॉलिक्यूलर मास जे एमडी करले
m1 n1 plus m2 n2 by केते n1 plus n2 दीटा एलिमेंट अच्छे x1 अच्छे x2 अच्छे आर मौलिक अवस्था अच्छे m1 तार केते m2 एमती करो अच्छा ओपन निकल के तो तने m1 into what mole fraction of x1 এটা এক্সট্রা কোন mole fraction plus m2 into what 1 minus x 1 minus x না বুঝলেনি কো বুঝলো না বুঝলেনি কো আচ্ছা মনে করো ইয়ে হচ্ছে x percentage by moles লিখে দেবো 100 minus x exactly same formula ইয়োর formula mixture of molecular mass তাহলে বর্তমান যদি গোটা হচ্ছে x1 percentage গোটা লাগে দাও x percent আর 100 minus x তাহলে এটা কি তবে কও তাহলে molecular mass of mixture equal what কেতরি m1 into x percentage plus 100 minus x into কেতরি m2 y কেতরি 100 y কেতে 100 अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ना बुझलेनी को बुझलेनी को वेरी सिंपल देखो पहले मु आको बेस करके ଗୋଟେ क्वेश्चन पचार देख मन कर अछि एआर कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एआर कंटेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एआर कंटेन व्हाट नाइट्रोजन एंड व्हाट ऑक्सीजन मु कहबी the molecular mass of air equal to 29 so what percentage nitrogen what percentage oxygen present in the air you have to calculate how again what percentage of nitrogen पचार जी केता हो how again देखो how again केना बोलो अरे को ना हब कि नहीं कह के जदि नाइट्रोजन होची x परसेंटेज तले ऑक्सीजन परसेंटेज केता हबो 106 हे लाइन ऑलरेडी हे लाइन हबनी हब कि नहीं कह त माने आंसर को हबो 29 इक्वल टू केता हबो कह 28 into x 32 106 y 100 क्लियर कि नॉट क्लियर ये बड़े क्वेश्चन अच्छे तुम कर परिबो ना बुझले नहीं कहो ए पार्टटा क्लियर कि नॉट क्लियर एंड नॉट क्लियर हबो कि नहीं कहो थरो नेक्स्ट पार्ट पे देखो determination of atomic mass of solid element or solid metal next देखो प्ले how to determine the atomic mass actually प्ले ए टॉपिक रे तीनोटी मात्र माइंड रे फास्ट देखो फार्मूला टोटल अछि तीनटा टाइप रो फार्मूला अछि तीनटा टाइप रो मेथड अछि तीनटा टाइप रो फार्मूला अछि तीनटा टाइप रो वेराइटी रो प्रॉब्लम ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पचारे ओनली 3 मेथड्स ओके मेथड 1 you know that I had already told you equivalent mass equal what atomic mass by valence simply formula ओटे एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास ता देथिबो डायरेक्टली न इनडायरेक्टली E देथिबो how to calculate E you know how to calculate E you know what is E equivalent mass valency देथिबो तले ए बार ना परिबो को valency देथिबो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुझने को तले ए बार ना परिबो को तले ए के तब को atomic mass equal what equivalent mass into valence very simply formula very simple किछ नै थरे इक्विवेलेंट मास देइतो बैलेंस देइतो एटा बाहरिबो डायरेक्ट फार्मूला इतर पाटो किछ नै ना बुझले निको
मेथड टू सेकेंड फॉर्मूला प्ले नेक्स्ट क्लास को एक्चुअली इंपोर्टेंट पार्ट आरंभ हम एगुड़ा सब किसी नहीं नेक्स्ट क्लास एक्चुअली इंपोर्टेंट नेक्स्ट पार्टा क्लास मिस कर सब प्रेजेंट रह मेथड टू टे कौन ना डुलंग पेटिट्स लॉ डुलंग पेटिट्स लॉ अच्छा पिले कहलो डुलंग पेटिट्स लॉ टा कौन व्हाट इज डुलंग पेटिट्स लॉ व्हाट इज डुलंग पेटिट्स लॉ व्हाट इज डुलंग पेटिट्स लॉ देखो पहले द एटॉमिक मास ऑफ a solid element if we multiply this its specific heat what is specific heat स्पेसिफिक हिट माने कौन फिजिक्स रे पढ़ता ना पढ़ना अरे स्पेसिफिक हिट माने कौन द जानना एटा द अमाउंट ऑफ हिट रिक्वायर टू राइज 1 degree Celsius of 1 gram of the substance 1 gram of what substance माने जदि 1 ग्राम सब्सटेंस अछि 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करा पई टेम्परेचर जदि रिक्वायर करबो त देखो सब्सटेंस रा अमाउंट केते 1 ग्राम टेम्परेचर शुड राइज हाउ मच 1 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर दैट इज कॉल्ड व्हाट स्पेसिफिक हीट तो फिजिक्स रे पढो मु डिटेल पढोनी देखो एटॉमिक मास सहित आमे जदि तार स्पेसिफिक हीट के मल्टीप्लाई करबा that approximately equal to कितने 6.4 approximately हबो एतिक हबो कौन कहली गोटे सॉलिड एलिमेंट रो स्पेसिफिक हीट सहित जदि एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करा जिवो तले एग्जैक्टली एतिक हबो approximately so approximately 6.4 हबो एटा अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ डुलंग पेटिट्स लॉ हैला एक्चुअली तार यूनिट कौन एक्चुअली तार यूनिट कौन किए कहि परिबो अरे यूनिट होच व्हाट स्पेसिफिक हीट रो यूनिट एक्चुअली कौन अरे कहून अरे यूनिट कौन कैलोरी पर ग्राम अरे यूनिट कौन एटी कौन यूज कराई इन व्हिच यूनिट कैलोरी पर व्हाट ग्राम पहले थोड़ा थोड़ा तुमको कौन कंफ्यूजन करके दे एक्चुअली को यूनिट अनुसार एटा अछि कैलोरी यूनिट एटा यूनिट शुड बी व्हाट कैलोरी यूनिट शुड बी कैलोरी जदि से जूल आकर देछि पिला यूनिट को चेक करंतनी जदि जूल देछि जूल तो डायरेक्टली यूज करतोती जूल तो डायरेक्टली यूज करबो आंसर रॉन्ग पाइबो बुझन को जदि जूल अछि यू हैव टू कन्वर्ट टू कैलोरी मन कर स्पेसिफिक देछि माने स्पेसिफिक देछि माने कोन मन करो एटा देछि 1.6 एतिकी जूल पर ग्राम तो आकु तो माने कि यूज कर दबो आंसर भूल पाइ जबो बुझने को एटा कोई यूनिट इट इज शुड बी व्हाट अरे को मानदाई के बसो एटा कैलोरी पर व्हाट ग्राम इट शुड नॉट बी जूल पर ग्राम इट शुड बी कैलोरी पर ग्राम जदि एटा जूल आकार अछि यू हैव टू कन्वर्ट व्हाट कैलोरी आ तुम जानिच 1 जूल केते कैलोरी हेड भी जानना 1 कैलोरी केते जूल अरे 1 कैलोरी केते जूल किछ पढ़न करे 1 कैलोरी केते जूल 1 कैलोरी हाउ मच जूल 4.2 जूल 9/10 रही 1 कैलोरी केते जूल एटा जान कि तमे 4.2 जूल ताने 4.2 जूल इक्वल 1 कैलोरी जो जति के जूल देछि त कैलोरी करबो ना करबोनी को जति की जूल अछि त कैलोरी कन्वर्ट करबो ना करबोनी को किंतु करबो भाई 4.2 अरे भाई 4.2 ना बुझलनी को तो यूनिट शुड बी व्हाट यूनिट शुड बी कोन कैलोरी यूनिट शुड बी व्हाट कैलोरी हला भूल भाल करबोनी ओके एडी पिला भूल कर बते दिल तुम
इट शुड बी कैलोरी, इट शुड बी कैलोरी। अच्छा बर्तमान मत पे कहल जदि स्पेसिफिक हिट देथिबो, स्पेसिफिक हिट दे क्वेश्चन दबो कोन, क्वेश्चन दबो कोन, क्वेश्चन रे दबो स्पेसिफिक सियोर दबो, एटा दबो, एटा को देबो सियोर, क्वेश्चन रे आकु दबो सियोर, आकु दबो ने कोन पायो तमे, तमे कोन पाइबो अप्रोक्सीमेट व्हाट, और तमे पाइबो कोन अप्रोक्सीमेट व्हाट एटॉमिक मास। माइंड रखो क्वेश्चन केमती इजीली करे जो तो बताउछि हला, आकु दबो, आकु देले तम कोन पाइ जिवो अप्रोक्सीमेट व्हाट एटॉमिक मास। सेकंड पॉइंट ई दबो, ईटा कोन इक्विवेलेंट मास, आकु दबो। ए डाटा रे तुम खोजबो ए दिटा थिबो, ए दिटा थिबो, पचरबो एग्जैक्ट एटॉमिक मास पचरबो केते हबो, क्वेश्चन पचरबो, एटा जो क्वेश्चन, क्वेश्चन ए टाइप रो आकु दबो, आकु इनडायरेक्टली डायरेक्टली दबो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबो, एटा पचरबो क्वेश्चन जेति। अच्छा प्ले करो हाउ कैन गेट ई, ए हाउ कैन गेट ए, एटा देखो ई देछि माने कोन करे ओनली बैलेंस, ई देछि माने कोन करे बैलेंस, जे बैलेंस पाइ जिबा एटा पाइ जिबा, बैलेंस पे गले एटा पाइ जिबा, कारण ई जणा अछि ईटा जणा अछि, दरकार कोड बैलेंस, तो माइंड रखियो बैलेंस, बैलेंस के तबो, बैलेंस के तबो बुझने को। अच्छा आकु देछि एटा को मारिबो, एटो को मारिबो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। तले बतन पे को फटाफट आंसर के करबो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास के दबो, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास के दबो को तुम 6.4 से दो जहां स्पेसिफिक दी तो डिवाइड कर तक संग से डिवाइड करबो, माने 6.4 रे रखू डिवाइड कर दबो, तुम कोन पाइ गेलो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट व्हाट एटॉमिक मास। ओके पिले तो बैलेंस पायो केमती ना, बैलेंस इक्वल टू व्हाट ए अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेट व्हाट, अरे कोनो एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली जहां पाइबो ताको ई रे डिवाइड कर दो, तमे तो बैलेंस के फ्रैक्शन होबनी, बैलेंस ऑलवेज व्हाट होल नंबर, बैलेंस ऑलवेज व्हाट होल नंबर, इट शुड नियरली इक्वल टू होल, नियरली इक्वल टू होल नंबर, नियरली इक्वल टू होल नंबर, एट होची एग्जैक्ट एग्जैक्ट बैलेंस पाइ जो, एग्जैक्टली बैलेंस पाइ जो, बैलेंस पाइ गलो, ईटा जणा अछि, ईटा जणा अछि, तले एटॉमिक मास बाहर न बारिबनी को, एटॉमिक मास बाहर न बारिबनी को हला, तले बतन मते पिले कहलो तले एटॉमिक मास केते हबो ओनली ई इनटू बैलेंस, ई इनटू बैलेंस। तो पिले क्वेश्चन रे ए दिटा को दबो, ए दिटा क्वेश्चन रे दबो, तो फटाफट आंसर केमति करो मते को, फटाफट आंसर केमति करो मते को 6.4 स्पेसिफिक को डिवाइड कर दबो, तापर जहां पे को पुनी ई रे डिवाइड कर दबो, पाइले कोन बैलेंस, बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दो, हबो कि नहीं को फटाफट करे भी जहां दे स्पेसिफिक हिट देखो ता यूनिट, यूनिट कोन अछि, यदि यूनिट कैलोरी अछि फटाफट डिवाइड करिवो, देख जूल अछि फर्स्ट कन्वर्ट टू कैलोरी, फर्स्ट कन्वर्ट व्हाट कैलोरी, तो 6.4 बाय स्पेसिफिक हिट तुम कोन पाइलो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, तो को ई रे डिवाइड कर दबो, पाइले कोन बैलेंस, आको तो संगे से मल्टीप्लाई कर दबो, हबो कि नहीं को, हबो कि नहीं को ना बुझले नहीं को, एनी डाउट देखो पहले मैं आको वेस्ट करके आको दबो एटा पूछा सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं, बट क्वेश्चन संग से दे दूसरो मु कोई भी लिखो स्पेसिफिक हीट इक्वल टू दिस, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 1.2 कैलोरी पर ग्राम, इक्विवेलेंट मास देछि, इक्विवेलेंट मास देछि 15.4 देछि 15.4 पचरछि ता एग्जैक्ट एटॉमिक मास केता, एग्जैक्ट एटॉमिक मास केता हबो, हबनी फटाफट एक केतला
6.4 by संगे संगे 1.2 डिवाइड कर दबो केते लागो 1.2 रे डिवाइड करले केते ला 5 point something गोटे काम कर जस्ट आई एम सॉरी वेरी सॉरी आको 1.2 रे भूल हम आको 0.1 धर 0.1 ने कैलकुलेशन तो इजी हो 0.1 धर 0.1 यू टेक 0.1 यू टेक 0.1 हम कि नहीं कह केते जोड़ा कह 64 तले बैलेंस केते ला 64 by 15.4 नियम इनको नियम होल नंबर केते हबो अरे कौन नियरली केते हबो 4 हबो नियरली 4 हबो एग्जैक्टली डिपेंड करबनी नियरली केते हबो 4 हबो हला तले आर्टिमस केते ला 15.4 into 4 this is the answer कुई गेलानी 6.4 रे आगो डिवाइड बाइंडर करिवो पूरा बाइंडर बाय दिस अगेन बाय दिस नियरली केते हबो नियरली 4 अरे नियरली 4 into this आंसर अरे बाइंडर एके कथा माइंड तो कैलकुलेशन एमती सहज लागो जिन करे मो पचरे की दरकार नै ना बुझिले निको एनी डाउट नेक्स्ट हबो ना क्वेश्चन आदर ए टाइप रो न्यूमेरिकल्स हबो कि नहीं को आराम से तुम कर परिबो नेक्स्ट देखो मेथड 3 पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होची गोटे कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास दबो किंबा हे कंपाउंड रो वेपर डेंसिटी दे पारे आइदर कौन दबो मॉलिक्यूलर मास और कौन दबो वेपर डेंसिटी पहले वेपर डेंसिटी देले एडा बाहर न करबनी को तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल कितने 2 into वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी दो कि मॉलिक्यूलर मास दो तमर माइंड रखिबो जे एम दरकार कंपाउंड रो एम दरकार कंपाउंड रो एम दा देइथिबो सेकंड एकु दबो सेकंड ई दबो ई दे कोन एलिमेंट रो इक्विवेलेंट मास एटा दबो আকু দব এই দুইটা দব পচারিব আটমিক মাসটা কেতে হবে আটমিক মাসটা কেতে হবে সে এলিমেন্টর আটম বেসটা পচারে কেতে এলিমেন্টর আটমিক মাসটা পচারে কেতে হবে তাহলে কোন দরকার তো মাইন্ড রাখলে কোন দরকার এই কম্পাউন্ডর এ এলিমেন্টর আটমিক মাস দরকার ই তার দেইছি দরকার কোডা তো মাইন্ড রাখবো না গো তুমি ই দেইছি মানে কখন খুঁজো তুমি খোঁজব কোন ভালেন্সি কেতে হব হলো কম্পাউন্ডর ভালেন্সি কেতে হব বুঝুছনি কো দেখো એટલે কম্পাউন্ডর ফর্মুলা বলে দিয়েছি মেটাল ক্লোরাইড কম্পাউন্ডর না হচ্ছে মেটাল হোয়াট ক্লোরাইড আচ্ছা ক্লোরিন ভালেন্সি কেতে ইউ নো 1 2 3 4 5 আরে আর ভালেন্সি তুমি জানিছো না জানো আকু জানিছো না আকু জানো কিন্তু আকু জানিছো না জানো এটা তো জানছো না 1 বলি কি এটা না জানো এটা জানিছো বুঝুনি কো মনে করো এটা হচ্ছে 1 এই সরি এটা হচ্ছে 1 এটা কেতে মনে করো x মনে করো x মনে করো হোয়াট x মো ফর্মুলা দউনি মো ফর্মুলা দেলে তুমি অ্যাপ্লাই করি পারিবে মনে পড়ুনি কিছু হবনি মো পুরা কনসেপ্ট কোচি তুমি কেমতি ইউজ করিবো মো কম্পাউন্ড তম বুক রে এগোটা আছে মো ডিফরেন্ট ভ্যারাইটি র বতই তুমি কেমতি হবো ভ্যারাইটি কেমতি করিবো না কনসেপ্ট বুঝিলে হলা कंपाउंड तुम बुक रे गोटा अच्छी मु मेटल ऑक्साइड देवी मेटल नाइट्रेट देवी क्वेश्चन कौन पचारि पारे तो जानि तुम बुझनी कह एटा मेटल क्लोराइड देछि बुक रे अच्छा आ बैलेंस केते अछि कह 1 आर केते अछि कह x तले कंपाउंड को हबो कह MClX कंपाउंडर ना होछि MClX तले बर्तन मते पहिले कहलो मेटल रो बैलेंस केतेला अरे कोन मेटल रो बैलेंस केतेला x তাহলে মেটাল র অ্যাটমিক স্কেল কত হবে অ্যাটমিক স্কেল কত হবে ই জানিছো ইনটু এক্স ইএক্স ই ইনটু এক্স ডোন্ট রিমেম্বার দ্য ফর্মুলা ইউ রিমেম্বার দিস ই ইনটু এক্স ই ইনটু হোয়াট এক্স এটা কোন তার অ্যাটমিক মাস
अच्छा कंपाउंडर कौन देछि एम देछि एम टा कोन मॉलिक्यूलर मास तुम कौन केमति करो मते कहलो मते तुम कहलो केन करिवो सिंपली ए कंपाउंडर तुम बाहर करो मॉलिक्यूलर मास के थाबो ए कंपाउंडर देखो मॉलिक्यूलर मास के थाबो कंपाउंडर मॉलिक्यूलर मास के थाबो किन बारे मते कहो गोटे कंपाउंडर मॉलिक्यूलर मास किन बाहरी कंपाउंडर मॉलिक्यूलर मास किन बाहरी सम ऑफ द atomic masses sum of the what atomic masses r atomic mass कितना x प्लस क्लोरीन atomic mass कितने भाई क्लोरीन atomic mass कितने 35.5 केतोटी अछि एक्स्ट्रा नंबर केतो अछि x नंबर केतो अछि x this equal to molecular mass this equal to molecular mass देखो तुम ई जणा अछि एम जणा अछि एटा देछि मु राइट आंसर देछि एटा ताकू देछि एटा देछि तले x बार न पारिबनि को x टा बार न पारिबनि को x टा कोन तर वैलेंसी x तार वैलेंसी ई देछि तले बार न पारिबनि को होबे कि नहीं को मु कोन कली फर्स्ट कंपाउंडर फार्मूला को लिखि देली तापर कोन बाकली कंपाउंडर मॉलिक्यूलर मास के था यूज मेथड यूज कांसेप्ट कंपाउंडर व्हाट मॉलिक्यूलर मास के था अच्छा बिल्कुल वैलेंसी के था x के था m by कितरी e plus 35 एटा जो फार्मूला ए फार्मूला बुक रे अछि तमे बेले तो मन पड़िबनी प्रॉब्लम क्रिएट हबो बुझने को तुम बेस्ट होची कोडा मेथड जाना कांसेप्ट जाना अरे बुझने को एट देखो जदि ये मेटाल क्लोराइड न कहि मेटाल ऑक्साइड रो मॉलिक्यूलर एम देथना मेटाल ऑक्साइड रो एम देथांता मतलब फार्मूला केन पके ताले मते कहलो किन फार्मूला पकेबो को से फार्मूला को यूज होबो से जो फार्मूला को यूज होबो की एट तले किन करा जबो को पूरा कांसेप्ट यूज करो आर वैलेंस तुम जानिछो केते 1 2 3 4 केते ऑक्सीजन वैलेंस तुम जानिछो ना जानो केते 2 आ वैलेंस होची x m2 x कंपाउंडर फार्मूला को फर्स्ट लिखि दियो कंपाउंडर फार्मूला फर्स्ट लिखि दियो आंसर हो जिवो एतरा बके नहीं को अच्छा m और atomic mass केते अरे कोनो x e into x अरे e into what x अच्छा मेटल अच्छी कितना दीटा into 2 अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ऑक्सीजन atomic mass कितने 16 into x equal to molecular mass ये फॉर्मूला हो ना नहीं थरको ये x बार ने बारे में को x बाला पर atomic mass बारे ने बारे में को तमे खाली जानतो मेटल क्लोराइड जानतो किंतु ऑक्साइड पचला माने टेंशन हो जावा आराम हो जो टेंशन संग से कारण कांसेप्ट बुझ नतो खाली फार्मूला बुझतबो अरे बुझले को कि मन को थर्ड मेथड मेटल कंपाउंड मेटल ऑक्साइड में कोई की मेटल नाइट्रेट देछि मेटल नाइट्रेट हो के नहीं को मेटल नाइट्रेट माने नाइट्रोजन वैलेंसी केते नाइट्रोजन वैलेंसी केते 3 आ वैलेंसी केते x एमती करा जो अरे क्लियर कि नॉट क्लियर क्वेश्चन जहां भी पचारो हम कि नहीं कहतर कॉन्सेप्ट बुझ कॉन्सेप्ट जान हला तीन टा मेथड मो बतैल तुमको हम कि ना एटा क्वेश्चन देबी कि एटा क्वेश्चन टा देबी किछि कि तो देखो कोन अछि तरे एटा खाली दीटा जिंस दबा कथा किछि पाठ नै तरे मन करो गोटे कंपाउंड रहउछि मेटल क्लोराइड कंपाउंड ना होछि मेटल एक क्वेश्चन को देथिबो मेटल क्लोराइड रो मॉलिक्यूल सर देछि आर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मन करो 100 मेटल क्लोराइड रो मॉलिक्यूल कितरे 100 इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इक्वल टू 12.5 सॉरी 12.5 से पचारछि मेटल एटॉमिक मास टा केता हो एटॉमिक मास टा केता हो फास्ट कौन करिवो फास्ट अप्रोच केमि करिवो
फास्ट देखो कंपाउंड रो फॉर्मूला कोन कंपाउंड रो फॉर्मूला फास्ट नोट करिवो कंपाउंड रो फॉर्मूला कोन हबो अरे कोन आ वैलेंस होच 1 आ वैलेंस किते x फॉर्मूला को हबो MCLX एटा एक्स्ट्रा कोन तरो वैलेंसी अरे x होच तरो वैलेंसी तले पिले को मेटल E केते हबो ए सॉरी A केते हबो सॉरी एटॉमिक्स केते हबो EX और एटॉमिक्स केते हबो E देछि अब E देछि हबो के नहीं को तले केते 12.5 into x plus 35.5 अकोटे काम करो अको 14.5 कर दो 14.5 के सुविधा हो 14.5 कर दो सुविधा हो 14.5 मैंने कटे सुविधा हो कहते 30.5 into x equal to 100 x तो वाला x equal to 2 अरे क्लियर कि नॉट क्लियर ना बुझले नहीं को एनी डाउट तीन मेथड बतली जे इक्विवेलेंट मास देथिबो वैलेंसी देथिबो डायरेक्टली देथिबो यू कैन गेट एटॉमिक मास सेकंड होची डुलनपेट्स लॉ स्पेसिफिक हीट दबो ई दबो एटॉमिक्स पचरिबो तले किन करा जिवो ना 6.4 स्पेसिफिक डिवाइड कर दबो पाइबो कोन अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास ताकू तुम कौन करो इक्विवेलेंट मास डिवाइड कर दबो पाइलो वैलेंसी पाइलो पर पहले कोन एटॉमिक मास केता एटॉमिक मास केता हला थर्ड होची एटा एनी डाउट क्लियर कि नॉट क्लियर बुझु छु जने को पहले नेक्स्ट देखो पहले गोटे गैस सब्सटेंस रो नॉर्मल डेंसिटी दबो नॉर्मल डेंसिटी देथिबो गोटे गैस रो नॉर्मल डेंसिटी देछि 8 एनटीपी एटा ओनली फॉर एटा गैस पाई नॉट फॉर सॉलिड नॉट फॉर लिक्विड गैस रो नॉर्मल डेंसिटी देछि हला पचरछि ए कंपाउंड रो ए गैस रो मॉलिक्यूलर मास केता हबो m केता हबो कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर मास पचरछि केता हबो कि नहीं देखो वेरी सिंपल पे देखो तमे जो नॉर्मल डेंसिटी माने कोन डेंसिटी माने कोन अरे कोन वेट बाय वॉल्यूम की कोई पेर देखो केम करा जो वेट बाय वॉल्यूम और यस और नो मन करो तार डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml तले व्हाट डज इट मीन आ माने एक्चुअली कोन 1.2 ग्राम पर ml मींस व्हाट वॉल्यूम टा ए तळे ऊपरटा कोन मास एटा वॉल्यूम केते 1 वॉल्यूम टा केते 1 मास केते 1.2 एटा कोन वॉल्यूम होची 1 मास केते 1.2 ताने वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ml मास इक्वल टू 1.2 ग्राम मो अधा बते देली तापर तुम बाकी तो तुम करो हबो कि नहीं को केन करा जीवो ता पर पार्टटा तुम करो केन करा जीवो को आकू कोन करिवो मोल्स करूनो आकू तुम मोल्स करूनो इक्वल कर दोनो आंसर पाई जीवो अरे कौन जे हबो कि नहीं को एटा मोल्स कल के हबो मोल्स कल के हबो वॉल्यूम रो मोल केन करा जीवो एनटीपी कंडीशन अछि एनटीपी मोल्स केन करा जीवो बाय 2 to 4 0 मोल्स से करा मास के मोल करा जीवो बाय मॉलिक्यूलर मास एम बारी ना बुझले नहीं को अच्छा बतन प्ले गोटे काम कलो जानी कि एम टे के तलको निकी एम इक्वल टू W by V into 22400 22400 W by V एम इक्वल टू W by V into व्हाट कितरे 22400 अच्छा प्ले कलो एटा कोन
नॉर्मल डेंसिटी और ये सो नो ता माने मोलिकुलर मास इक्वल टू नॉर्मल डेंसिटी इनटू व्हाट 22400 देखो यूनिट कौन जदि ये ग्राम पर ml को 22400 ग्राम पर लिटर 22.4 एटा एटा मेन वॉल्यूम देखो केते अछि वॉल्यूम अछि ml into 22400 वॉल्यूम अछि लिटर एटा केते हो 22.4 दि ग्राम अछि ग्राम मोल पाइबो केजी अछि केजी मोल पाइबो हबो कि नै को एनी डाउट ना बुझिला नि को ओके अच्छा तो यू नो molecular mass equal to 2 into vapor density 2 into what vapor density it put कर दियो यानी कि vapor density equal to normal density into केता को जदि डेंसिटी अछि ग्राम पर ml यूनिट अछि ग्राम पर ml into केते 11200 जस्ट मल्टीप्लाई विथ 11200 ताने नॉर्मल डेंसिटी दबो क्वेश्चन रे नॉर्मल डेंसिटी दैथिबो क्वेश्चन रे नॉर्मल डेंसिटी दैथिबो पचर वेपर डेंसिटी केता हबो कि नै को सिंपली मल्टीप्लाई विथ व्हाट 11200 एवले क्वेश्चन अछि तो बतै देली अरे बुझला ना बुझने को क्लियर नॉट क्लियर एनी डाउट हला तो एटॉमिक मास मोलिकुलर मास दिस पार्ट इज ओवर तो बर्तमान सब कुछ आराम से करि परिबो जदि डाउट मत पचारिबो पहले नेक्स्ट पार्ट होची आ टिके रहला नॉट इंपोर्टेंट तते बते दोची बाय चांस पचारि क्वेश्चन केते लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो टिके टिके अछि तो मु बुझी दोची तुम जहा क्वेश्चन पचारिबो क्ले बते दोची लॉज ऑफ व्हाट केमिकल combination तो बोले laws of a chemical combination means A combine with B to produce what C and D पहले देखो और combination करया पई for this combinations you have to actually you have how many laws 5 laws law of conservation of mass law of definite or constant proportion law of multiple proportion law of reciprocal proportion and Gay-Lussac's law of gaseous volume Gay-Lussac's law of what gaseous volume okay तो first है कौन law of what conservation of mass What does it mean? Means total mass of the reactant must equal to total mass of the product during a chemical reaction. Mass can neither be created nor be destroyed. माने mass of reactant equal to mass of the product. Total mass always same. ना बुझने को मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल व्हाट मास ऑफ द प्रोडक्ट कि चेंज होबनी किछ अच्छा उतर मते बिल्कुल ए रो मास देछि बी मास देछि सी मास देछि डी मास बारे ने बारे को आकु देछि एटा बारे ने बारे को दिस मास इक्वल टू दिस मास ऑलवेज सेम मास ता सदा लग हो समान हो टोटल मास एपड़ जाब टोटल मास एग्जैक्टली सेपड़ से आब आपको बेस करी सेमती क्वेश्चन किछि पचारे प्राय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड पॉइंट लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन एटा सेकंड थर्ड होची लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो आगे तो कौन टा डिफरेंस बोले बुझे दोछि कौन बेस कर क्वेश्चन पचारे बोले बुझे दोछि सो इफ वी टेक टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन
हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू डिफरेंट एलिमेंट्स अच्छा पहले ये जदि कंबाइन करेंगे ये लॉ ऑफ मल्टीपल फॉलो करुच्ची ना लॉ ऑफ डेफिनेट फॉलो करुच्ची तुम केमती कह मत कहल if hydrogen react with oxygen whether that follows law of constant proportion or law of multiple proportion how can you say केमती कहब तुम केमती कहब if hydrogen combines with oxygen to produce only one compound मन करो water दला only water formation वाला and in all cases the mass ratio remains same equal to 1:8 1:8 2:16 or कितने 1:8 in every cases in every cases the mass equal what कितने 1:8 1:8 in every cases if hydrogen combines with oxygen to produce more water therefore only water in all cases the mass ratio remains same therefore which law of constant or definite if hydrogen combines with oxygen to form both either H2O or H2O2 both can form so they only form this tale kya hobo that follow which proportion law of constant proportion only form this law of constant proportion if we combine hydrogen combines with oxygen to form H2O H2O2 both formation of this follows what law of multiple proportion law of multiple what proportion single compound proportion hobo tale kya hobo constant different type of compound proportion hobo tale kya hobo multiple only one compound constant different compound tale kya hobo multiple आंसर फटाफट पे जीवो अच्छा एट रेशियो सब कम हम सब हम 1:8 1:8 1:8 तार कम लॉ ऑफ व्हाट कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना बुझने को किंतु लॉ ऑफ मल्टीपल कम एट रेशियो के थबो 1:8 एटे के थबो एटे 1:8 एटे के थबो रे 1:16 1:16 और 2 टाइम्स सेटा नहीं को 1:16 और 2 टाइम्स सेटा बना नहीं को एटा को मल्टीपल एटा करे मल्टीपल in one cases ratio equal what 1:8 in other case 1:16 so this follows which law of what multiple proportion law of multiple what proportion बुझियो चने को देखो मैं को बेस कर क्वेश्चन पचर देखो तुम आंसर कहबो वेरी सिंपल आंसर देखो if carbon and oxygen combine it form only carbon dioxide एति की पचरे this follows which law of definite proportion simple answer law of definite proportion okay second question देखो if a carbon combine with oxygen it forms compound 1 compound 2 compound 3 in all cases carbon oxygen ratio equal to 3:8 so this follows which law of definite proportion क्वेश्चन जेमती पचार मुझे बतई दूसरी क्वेश्चन टा जो अनुसार पचार मुझे से अनुसार बतई दूसरी ना बुझे बुझे को पचार थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कौन we carbon combined with oxygen it either form CO or form CO2 CO2 both formation होची ताले जे को लॉ को फॉलो करिवो लॉ ऑफ मल्टीपल को फॉलो करिवो क्लियर नॉट क्लियर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कार्बन combined with oxygen to produce compound 1 compound 2 compound 3 compound 1 compound 2 compound 3 in the first case 1:3:8 second case 3:16 third case 3:32 so this follows which law of multiple proportion are clear कि not clear ए क्वेश्चन जो टाइप पचार आंसर तुम से टाइप दब एथर क्लियर तो एनी डाउट वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके
लास्ट पॉइंट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक्चुअली आपको बेस कर क्वेश्चन किसी पचारेनि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तथे बुझी दूजी कौन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल व्हाट प्रोपोर्शन एट देखो यू टेक 3 एलिमेंट्स लॉ ऑफ मल्टीपल डेफिनेट 2 एलिमेंट्स एट 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन वेरी सिंपल देखो कॉन्सेप्ट होची या जे जनकर फिक्स मास सहित ये को रेशियो रे कंबाइन करिवे और फिक्स मास सहित ये को रेशियो रे कंबाइन करिवे और फिक्स मास सहित ये को रेशियो रे कंबाइन करिवे रेशियो रे केता हो और फिक्स सहित या रेशियो केता हो सल्फर ऑक्सीजन रेशियो और फिक्स मास सहित रेशियो केते गोटे केस सेकंड केस अंको निज भीतर रेशियो केते दीटे केस एटे फर्स्ट केसटा कोन जनकर फिक्स मास सहित रेशियो केते सेकंड केसटा कोन निज भीतर रेशियो केते जदि कंपैरिजन करा जिवो ए दीटा कंपैरिजन करा जिवो सेम हे पारे नले मल्टीपल हे पारे सेम और मल्टीपल कोन को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ना उतर कहबी को आउथर कहबी कि एट देखो मन को मु सल्फर को फिक्स कली और फिक्स मास सहित हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशियो केते हो H2O एटा को रेशियोटा फिक्स मास और रेशियो निज रेशियो केते ये निज रेशियो केते H2O जदि कंपैरिजन करा जिवो आइदर सेम और व्हाट मल्टीपल सेम पे मल्टीपल अरे क्लियर कि नॉट क्लियर अब द लॉ ऑफ व्हाट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एट देखो एट देखो बहुत सुनो मनकर हाइड्रोजन कमन ऑक्सीजन इट फॉर्म H2S हाइड्रोजन कमन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर अंकतर कॉमन एलिमेंट किस हाइड्रोजन कॉमन यू मेक हाइड्रोजन फिक्स हाइड्रोजन रेशियो केते हाइड्रोजन सल्फर रेशियो केते 2:32 एट रेशियो केते 2:16 अच्छा हाइड्रोजन फिक्स मास यूज करे एटा फिक्स हाइड्रोजन फिक्स हे गला ताले पे कहलो एटी ऑक्सीजन सल्फर रेशियो केते होबो ऑक्सीजन सल्फर रेशियो केते होबो 1:2 अच्छा निजे कम देखले कोन होबो SO2 पर SO3 पर जहां भी नहीं पता व्हाटएवर यू मे टेक that does not mean it form SO2 it may form SO3 whatever you may take SO2 you may take what SO2 in SO2 the oxygen sulfur ratio equal how much oxygen कहते oxygen sulfur ratio 1:1 एटा 1 सेटा हाफ अरे 1/1 में कोन 1:2 माने को हाफ पर 1 टा मल्टीपल होगी अरे हाफ पर 1 टा मल्टीपल होबनी कि हबो नहीं को एटा कोन लॉ ऑफ व्हाट रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आको बेस कर क्वेश्चन किछ पचारे नहीं एमति किछ नहीं क्वेश्चन किछ नहीं तरे खाली कॉन्सेप्ट बुझिया था किछ नहीं न बुझले चलिबो हेलो खाली लॉटा कोन जनकर फिक्स मास दो रेशियो केते निज भीतर रेशियो केते जदि कंपैरिजन करा जिवो से सेम हे पर नले मल्टीपल हे पर ये जे कॉन्सेप्ट तार डिफरेंशियल की देखिया दरकार नहीं किछ हबो नहीं को एनी डाउट देखो प्ले तुम जो टिके जिनस थिला ए टॉपिक रे मु तुम क्लियर बुझी देली नॉट नेसेसरी लॉ रे कौन अछि गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट bear a multiple ratio in their volume what in their volume nitrogen gas hydrogen gas if you combine to produce ammonia volume ratio कितना हो mole ratio equal to volume ratio it is part of किछ नहीं एट देखो Gay-Lussac's law nitrogen plus 3 hydrogen to produce 2 ammonia
যদি কন্ডিশন সেম, টেম্পারেচার সেম, প্রেসার সেম, ভলিউম রিমেন সেম, যদি ये 1 mole you take 1 volume, 3 mole take 3 volume, 2 mole take what 2 volumes, तो रेशियो कितना होगा 1:3:2. ये is what Gay-Lussac law. Not important. This is what Gay-Lussac law. Not important. शुण पे तुम एटा इंपोर्टेंट से नुह तुम खाली बर्तमान खाली कहीदेली एक्चुअली तुम मेन पार्टा तुम नेक्स्ट आरंभ करी कंसंट्रेशन टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सेटा क्लियर होला परे प्रॉब्लम किछ हबो. बुझले तो कंसंट्रेशन पार्टा हला नॉर्मालिटी मोलारिटी ए सब जिनसटा को तार एटा होची मेन पॉइंट टा आकु क्लियर होला परे प्रॉब्लम किछ हबो.